In this video, I will tell you about partial differential equation, its definition and some examples. I will also tell you what are the different types of partial differential equation. There are four types of partial differential equation which are linear, semi-linear, quasi-linear and non-linear partial differential equation. I will also tell you when some surface is given, then how we will generate its partial differential equation. So let's get started. So first of all, we will see definition of partial differential equation. So a differential equation involving a differential equation, what is the definition? A differential equation involving dependent variable. तो हमारे पास partial differential equation में क्या एक dependent variable है and its partial derivatives and more than one independent variable. So in partial differential equation we have more than one independent variables. So independent variables are more than one. In ODE, ordinary differential equation, we have more than one dependent variables and only one independent variable. So this is the difference between ODE and PDE. In ODE, we have only one independent variable and in PDE, we have more than one independent variables. So a differential equation involving dependent variable. So what was the definition in ODE of differential equation? Again, we have differential equation involving dependent variables and its derivatives. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कहते हैं जस्ट डेरिवेटिव्स. सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट्स डेरिवेटिव्स एंड an independent variable, that is called ordinary differential equation. But in PDE we have dependent variable and its partial derivatives. So it is the major key in partial differential equation. We write partial derivatives and more than one independent variable. This is called partial differential equation. What are the some examples for partial differential equation? So we have this example ux. So what we write ux. So in OD what we write? We write dy by dx. So we have here independent variable is x and dependent variable is y. So we write directly derivative dy by dx. But in partial differential equation, we have more than one independent variable. So we differentiate with respect to those variables. So if we have two independent variables, like here we have x and y are two independent variables. So we differentiate the dependent variable which is u with respect to x and y both. So we will not write du by dx directly. So we write curly d. We write not directly d, हम लिखते हैं कि curly d. तो डेल यू बाई डेल एक्स लिख देते हैं. सो दिस इज, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि यू जो है यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल यू है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड है. सो यू एक्स, सो इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, और इसको हम इस तरह से यू और नीचे एक्स भी लिख सकते हैं. तो यहाँ से भी ये भी यही डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल यू है उसका डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डेल यू बाई डेल वाई है, उसको भी हम यू वाई लिख सकते हैं, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस यू इक्वल्स टू एक्स वाई. दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि ये किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहाँ पे दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो यहाँ पे क्या यू डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि दो वेरिएबल्स एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, बट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. If we have another example, del 2u by del x square plus del 2u by del y square plus del 2u by del z square equal to 0. अगेन u यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x y एंड z. इन तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है. और यहाँ पे क्या हुआ, ये सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन. क्यों? क्योंकि ये जो हायर ऑर्डर है दैट इज 2 हियर. सो दिस इज डेरिवेटिव यू का, यू एक्स जो था दिस वॉज फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हमने लिखा डेल यू बाय डेल एक्स. लेकिन अगर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं जो कि सेकेंड ऑर्डर का हो गया. तो वो है डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, जिसको हम यू एक्स एक्स भी लिख सकते हैं. उसी तरह से डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर को हम यू वाई वाई भी लिख देंगे एंड डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर को यू जेड जेड लिख देंगे. ठीक है.
सो ये सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू इक्वल्स टू एक्स वाई, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसका फर्स्ट डेरिवेटिव का रखा है बस। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? वही अभी मैंने बताया, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? इन्वॉल्व्स एन अननोन फंक्शन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारे पास यही है कि एक अननोन फंक्शन कह लो या उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कह लो, ठीक है। सो इन्वॉल्व्स एन अननोन फंक्शन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आएगा यहाँ पे, जो कि मिस हो गया है, एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? एफ ऑफ एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई इक्वल्स टू जीरो, यानी जेड जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे पता चला कि वो डिपेंडेंट है? क्योंकि जेड का डेरिवेटिव क्या रखा है? पार्शियल डेरिवेटिव का रखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी क्या है और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी क्या है। इसका मतलब जेड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म कैसे आ गई है? तो अभी का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होगा? एक अननोन फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि z है, तो उसमें z आएगा, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे जो कि जेड एक्स जेड वाई होंगे, और साथ में यहाँ पे आएगा एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि x और y हैं। तो ये सब कंटेन करती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एग्जाम्पल क्या हो गया? इस तरह का हो गया जेड एक्स प्लस जेड जेड वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो क्या है यहाँ पे? तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे क्या है? z है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, उसका डेरिवेटिव कर रखा है हमने विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सो zx हो गया। सो क्या कहा था हमने? डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके पार्शियल डेरिवेटिव। सो डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी आ गए। तो इस तरह की फॉर्म जो है दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर किया और मैंने कहा कि ये सब आते हैं, सॉरी, हाँ, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है और हम कह रहे हैं कि वो ये सब इंक्लूड करती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे ही हमेशा इंक्लूड करेगी, कुछ चीज़ मिस भी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या चीज़ मिस नहीं हो सकती? जेड एक्स उसमें आएगा या फिर उसमें जेड वाई आएगा, चाहे दोनों आ जाए, दैट डजेंट मैटर्स। सो जेड एक्स फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो आएगा ही आएगा, तो जेड एक्स आ जाएगा, जेड वाई आ जाएगा, दोनों में से एक चीज़ आ जाए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और ये चीज़ अगर नहीं भी होंगी तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से दे रखा है डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू जेड वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कर रखा है, उसके पावर ले रखी है, 2 ले रखी है, तो पावर 2 कर दी, प्लस जेड एक्स जेड वाई इक्वल टू जेड वाई स्क्वायर। अब जो हायर ऑर्डर है यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स है, चाहे उसकी पावर 2 कर रखी हो, लेकिन जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगी। लेकिन इसकी पावर लीनियर नहीं होगी तो ये नॉन लीनियर बन जाएगी। वो हम आगे देखेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या है। और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर करा है, दिस इज नॉट इक्वल टू डेल टू जेड बाई डेल एक्स। यहाँ पे जेड का सेकेंड डेरिवेटिव का रखा है और यहाँ पे जेड का फर्स्ट डेरिवेटिव ही है, बस उसकी पावर ले रखी है। सो ये दोनों चीज़ें कभी भी सेम नहीं है। Now I will tell you what are the different types of partial differential equation. So first of all, we will see what is linear partial differential equation. सो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या कंटेन करेगी? डिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करेगी, इट्स डेरिवेटिव कंटेन करेगी, ठीक है। लेकिन लीनियर में क्या चाहिए हमें? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे और उनकी पावर्स जो है वो भी लीनियर रहेंगी, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म क्या है पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की? जनरल फॉर्म इसकी ये वाली है, ठीक है। पी, दिस इज पी इज व्हाट? डेल जेड बाई डेल एक्स, और क्यू को हम डेल जेड बाई डेल वाई लिख रहे हैं ताकि हम बार बार डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई ना लिखें, दिस इज द नोटेशन, ठीक है। सो p is the first derivative of z with respect to x and q is the first derivative of z with respect to y। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, यानी जेड एक्स है यहाँ पे, जेड वाई यानी इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ जो कोफिशिएंट है उनकी बात कर रहे हैं। क्या है पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ कोफिशिएंट्स?
ये वाला p है और ये q पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ का कोफिशिएंट है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y ओनली। तो यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ z नहीं आएगा। क्यों? अगर फंक्शन ऑफ z आ जाएगा जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और और p उसका डेरिवेटिव, वो दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और लीनियर के हिसाब से लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स आर नॉट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। तो यहाँ पे जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स और वाई ही होंगे। एक्स और वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कितनी भी पावर्स आ जाए, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिमिलरली क्यू जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो उसके साथ जो है मल्टीप्लाई क्या होगा, जो भी होगा मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, उसके साथ कोई डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा। और राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्स वाई आ जाएगा, दैट इज ओके। लेकिन जेड अगर आएगा तो उसकी पावर हमेशा लीनियर रहेगी। दिस इज अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। And an example for this is a x square p plus xyq equal to xy square z। तो यहाँ पे एक्स स्क्र पी इज द डेल जेड बाई डेल एक्स एंड क्यू इज डेल जेड अपॉन डेल वाई, उसके साथ एक्स स्क्र, एक्स और वाई की कोई पावर हो दैट डजंट मैटर्स, एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई स्क्र जेड। यही इसकी जनरल फॉर्म की जैसा ही है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई चाहिए पी के साथ हमें, तो जो कि जस्ट एक्स स्क्र ले लिया और वाई की पावर 0 हो जाएगी, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। क्यू एक्स वाई है तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई ओनली, सो वी हैव एक्स वाई हियर क्यू के साथ। एंड राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड का फंक्शन आ सकता है, तो एक्स वाई स्क्र जेड पूरा ही ले लिया हमने, लेकिन जेड की पावर हमेशा यहाँ पे 1 रहेगी क्योंकि ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद है हमारे पास सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, सो दिस इज लीनियर इन पी एंड क्यू। सो ये जो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी और क्यू में लीनियर है। पी और क्यू क्या थे, डिपेंडेंट वेरिएबल जो था जेड, उसके डेरिवेटिव्स थे, यानी पी वॉज जेड एक्स एंड क्यू वॉज जेड वाई। तो ये क्या है, लीनियर है इन पी एंड क्यू, यानी इनकी पावर्स नहीं आएंगी, जेड एक्स और जेड वाई जो है उनकी पावर्स नहीं आएंगी यहाँ पे। सो दे आर लीनियर इन पी एंड क्यू एंड कोफिशिएंट ऑफ पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। सो पी एंड क्यू के जो फंक्शंस हो, पी एंड क्यू के जो कोफिशिएंट्स होंगे, पी ये रहा क्यू ये रहा, इनके जो कोफिशिएंट्स है यानी ये जो हैं ये फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी एक्स एंड वाई ओनली आएगा यहाँ पे, ओनली एक्स नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जेड का फंक्शन नहीं होगा, सो एक्स एंड वाई, तो दे आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। जेड का फंक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि जेड का फंक्शन होगा तो फिर ये सेमी लीनियर नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये उसी की तरह है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, कोफिशिएंट्स जो है पी और क्यू के वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही रहेंगे। राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकता है, लेकिन सेमी लीनियर में क्या है, यहाँ पे जेड की पावर्स आ सकती है। लीनियर में क्या था, राइट हैंड साइड में भी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर नहीं आएगी, लेकिन सेमी लीनियर में डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर्स आ सकती हैं। उसके बाद है इन क्वासी लीनियर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ, जब हम क्वासी लीनियर की बात करते हैं तो जो पी एंड क्यू, यहाँ पे पी एंड क्यू नहीं आएगा। So in quasi-linear P and Q, you can write coefficients of P and Q. So coefficients of P and Q are functions of x, y, z. तो quasi-linear में जो coefficient होता है P और Q का, वो x, y, z का function हो सकता है, यानी ये coefficient और ये coefficient जो है वो x, y, z के function हो सकते हैं। यहाँ पे linear और सेमी लीनियर में ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही रहेंगे, कभी जेड का फंक्शन नहीं आएगा इस साइड। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, लीनियर में राइट हैंड साइड में जेड की पावर्स नहीं आएंगी, ठीक है। फंक्शन ऑफ जेड तो आ सकता है लेकिन जेड की पावर्स नहीं आएंगी, और सेमी लीनियर में जेड की पावर्स आ सकती हैं। तो सेमी लीनियर में यहाँ जेड की पावर्स आ सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सो क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड देयर डेरिवेटिव्स आर लीनियर इन पावर्स। तो राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ जेड तो आ सकता है, लेकिन पावर हमेशा लीनियर रहेगी, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर लीनियर इन पावर। सो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा पी प्लस क्यू एक्स वाई जेड, क्यू इक्वल टू आर एक्स वाई जेड, इस तरह से दे रखा है। तो इसके लिए हमने इस तरह का एग्जाम्पल ले लिया है। तो ये जो है ये हमारा बड़ा वाला पी हो जाएगा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ जेड एक्स है। सो जेड माइनस एक्स का फंक्शन हो गया, जेड का फंक्शन भी है, यानी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, राइट हैंड साइड में भी एक्स वाई जेड का फंक्शन आ सकता है। यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, जेड यहाँ पे 0 है,
ठीक है, लेकिन इनकी पावर्स हमेशा लीनियर रहेंगी। सो हेयर डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम देखेंगे क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल z एंड इट्स डेरिवेटिव्स zx एंड zy आर मल्टीप्लाइड। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स z और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रखे हैं, बट देयर पावर इज लीनियर। तो पावर हमेशा यहाँ पे लीनियर रहेगी क्वासी लीनियर में। और नॉन लीनियर में हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर की जनरल फॉर्म क्या, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैंने कहा है कि क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि z आएगा उसके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल z आएगा उसके डेरिवेटिव्स आएंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और दिस कैन बी रिटन, अगर हमको इस तरह से लिखना है तो इसको इस तरह से लिख दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, पी और क्यू है, एक्स वाई जेड 0 हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर्स आ रखी हैं, नॉन लीनियर में हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, बाकी की पिछली दो तीनों जो भी थी टाइप्स थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उनमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर्स कभी नहीं आएगी। Now we will see if we have some surfaces given, then how we will generate its partial differential equation. So we have given x square plus y square equal to z minus c का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास एक सरफेस गिवन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे सरफेस होता क्या है। तो ये इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल, ये सरफेस हमें गिवन है, तो हमें इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो वी विल फर्स्ट डिफरेंशिएट, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ बन के आएगी 2x इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस सी डेल जेड बाई डेल एक्स टेन स्क्वायर अल्फा, और डेल जेड बाई डेल एक्स की जगह पर हम यहाँ पे p भी लिख सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 2y 2 इंटू जेड माइनस सी जेड वाई टेन स्क्वायर अल्फा, और 2y इक्वल टू 2 जेड माइनस सी क्यू टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे हमने डेल जेड बाई डेल वाई की जगह पर q लिख दिया। ठीक है, अब 2 और 3 स्टेप्स का यूज़ करके हमें ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो x बाय वाई हो जाएगा, और यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद p बाई क्यू इन राइट हैंड साइड। और फर्दर दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स क्यू माइनस पी वाई, या एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई लिख सकते हैं हम, एक्स इंटू क्यू, बट क्यू वॉज डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू वाई पी, एंड पी वॉज डेल जेड बाई डेल एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, हेयर वी हैव टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सी एंड अल्फा। जब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें देखिए 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, सी है और अल्फा है। जब हमारे पास 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं और विच इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जितने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास 2 थे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इक्वल है। तब हमारे पास क्या होता है, वी गेट अ यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हमें एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है जब हमारे पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सेम है, तब हमारे पास यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल, ये उसी की तरह है कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, 2 ही हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, सो वी विल गेट यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी हैव u माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं u इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। अगेन हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, सो वी विल डिफरेंशिएट, सो विल डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वी गेट p इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले कर रहे हैं तो डेल यू बाई डेल एक्स, जिसको मैंने p लिख दिया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो a आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, y जब हमारा कांस्टेंट रहेगा तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बी वाई का डेरिवेटिव 0 होगा। उसके बाद भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, जब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाय डेल y आएगा विच इज़ इक्वल्स टू q। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम तो ये ए एक्स है, यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, x को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। ठीक है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे y तो है, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव करेंगे b आ जाएगा प्लस ए बी फिर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा। तो यहाँ पे मुझे एक तरह से a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। तो हमारा मेन एम क्या है, जो हमारे पास गिवन सरफेस है उसमें से हमें कॉन्स्टेंट्स रिमूव करना है।
तो यहाँ पे ए बी की जगह भी यहाँ पे पी क्यू ही लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से सिर्फ ए बी लिखा गया है। सो अब हम ये वैल्यूज़ जब हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डालते हैं तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, u इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस ए बी की जगह पर यहाँ पे पी क्यू लिखा जाएगा। सो ए बी की जगह यहाँ पे पी क्यू लिख देंगे, हम ए बी को रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जब इस तरह की फॉर्म, यहाँ पे तो सिंपल सी फॉर्म थी u इक्वल टू, यहाँ हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमारे पास अलग तरह का सरफेस दे रखा है, क्या दे रखा है, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेन एम तो हमारा यही है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना है। उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई डिफरेंशिएट करके उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। सो जब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट पी इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब उसके बाद एंगल का जो अंदर होता है हमारे पास उस फंक्शन का उसका करेंगे, सो दिस इज 2x, और y तो हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बस 2x आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y जब डिफरेंशिएट करेंगे सो डेल जेड बाई डेल वाई आएगा, जिसको हमने q लिख दिया, दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, जब x कांस्टेंट रहेगा तो डेरिवेटिव सिर्फ 2y आएगा, ठीक है। इस तरह से आ गया। उसके बाद क्या है, 2 एंड 3 से हमें क्या मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p बाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। So on dividing 2 and 3 we get p by q equal to x by y और py minus x q equal to 0। नेक्स्ट हमारे पास z इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये भी उसी तरह से करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा, जिसको हम p लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका होगा f डैश ऑफ y बाय एक्स आ जाएगा, एंड जो अंदर है y बाय एक्स उसका डेरिवेटिव का अब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, y को हम कांस्टेंट मानते हैं। अगर y हमारा कांस्टेंट जैसे 1 है तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, माइनस का y बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। नाउ इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, सो डेल जेड अपॉन डेल वाई, q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई, सो दिस इज f डैश y बाय एक्स हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू सॉरी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, y बाई एक्स का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, सो वी विल गेट p बाई क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का y बाई एक्स, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है इफ नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर लेस देन। अभी मैंने कहा था कि अगर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो सेम होता है तो हमारे यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इफ नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तब क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हमारे पास मोर देन वन ही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अगर कम हो जाता है तो हमें क्या मिलता है कि वी गेट 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो हमारे पास 2 पीडीई मिलती हैं फर्स्ट ऑर्डर की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो सिर्फ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो तो x एंड y हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिर्फ एक है, a इज द ओनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगी फर्स्ट ऑर्डर की। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो हमारा फर्स्ट स्टेप इज टू डिफरेंशिएट। सो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट में करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। सो पी इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स विद रिस्पेक्ट, सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 1। अब यूजिंग p इक्वल्स टू a इन 1, p इक्वल टू a का यूज़ करेंगे, अगर हम 1 में यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस वाई, ठीक है। p इक्वल टू a की वैल्यू 1 में डाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस वाई। अब z इक्वल्स टू p क्या था हमारा, डेल जेड बाई डेल एक्स, सो z इक्वल्स टू एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। हमारे पास q इक्वल टू 1 भी तो है, उसका भी यूज़ करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू 1। ये पास्ट डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे जो कि x और y हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा और उसके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
जो डेरिवेटिव्स है वो या तो एक आ जाए या दोनों आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तो पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए ही चाहिए उसको फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए। सो जेड वाई इक्वल टू 1 आ गया तो एक पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, इसका मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तब क्या हुआ? सो इफ नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन बाय एलिमिनेटिंग कॉन्स्टेंट्स, हम कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। सो वी गेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। सो एक से ज़्यादा ऑर्डर की हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। उसके बाद क्या है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने हैं। 2z इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा, एंड देन नेक्स्ट है z इक्वल्स टू ई की पावर वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू what is complete integral, how we will find general solution of differential equation and the definition of general solution, what is particular solution and singular solution. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। And also, if you want more videos on partial differential equation and how we will find its solutions, then let me know in comment box. Thank you.